पाइप नेचुरल गैस का नेटवर्क तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, पर हमारे पास इसको जलाने के लिए कोई डेडिकेटेड बर्नर नहीं था। हमारे कंट्री में लगभग 70 लाख से ज़्यादा PNG कनेक्शंस हैं और ये अनुमान है कि आने वाले 2 सालों में ये जो कनेक्शंस की संख्या है वो 4 करोड़ हो जाएगी। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे कि इस स्टोव की, इस बर्नर की जो खासियत है कि ये लगभग 20 से 25% तक आपकी फ्यूल को सेव कर सकता है, और ये सिर्फ लैब के रिजल्ट्स के आधार पर नहीं कह रहे, ये हमने लगभग 200 से अधिक घरों में इसके जो फील्ड ट्रायल्स हैं वो किए हैं विभिन्न CGD कंपनीज़ के साथ मिलके। ये उनके रिजल्ट्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 20% तक फ्यूल सेविंग इस बर्नर से संभव है। You know, our cities are actually shifting to pipe natural gas. But while we are actually doing that, are we actually changing our burners too? Is our burner a dedicated pipeline natural gas burner? And this was something that was discovered by a team of scientists from CSIR IIP. They discovered how by using a dedicated pipeline natural gas burner can have a huge climate impact. Let's discover how with Mr. Pankaj Arya on the Climapanor show today. I hope you enjoy the conversation. Now, if you're also looking to change your burners to a dedicated pipeline natural gas burners, please comment in the comment section below. I'll be happy to share with you the contact numbers of the people from whom you can buy these burners. Welcome, Pankaj ji, on the Climapanor show. Pankaj ji, you are the principal scientist at CSIR, Indian Institute of Petroleum, and today we really are talking about the technology that you have developed, the fuel-efficient domestic burner for pipe natural gas. So, my first question to you is that how did you actually identify कि ये एक problem भी है? Because गैस तो हम सबके घर में है, पाइप गैस भी अब पहुँच ही गई है, but बहुत सारी बार हम observe नहीं कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, and why did you actually create this burner? Okay, thank you very much. Madam, as you know that India is a very big country, and domestic energy sector is one of the largest energy consuming sector of our country. LPG, we have been using LPG since very long, and if you talk about the urban areas, LPG is the most prominent fuel that we are using in our household. But over the period of time, this LPG has become very expensive for the common people to use, and you must be knowing that more than 57% of our LPG demand we meet or we import from other countries. So LPG in this way is a very expensive fuel, and in the coming years the situation will be more you can say worse. So we are trying our best to find alternative fuel sources, especially for the domestic energy sector, and in this context we have been working since last 10 years, and natural gas is the most suitable fuel for Indian household as far as the present context, present time is concerned, because you must be knowing that in foreign countries natural gas is already is being used as a domestic fuel, but in our country natural gas usage as domestic fuel is gaining its pace. So it started in the year 2015 when we first proposed this project to PCRA. PCRA is the Petroleum Conservative Research Association. It is a government organization based in New Delhi. So we proposed one project, and which was based on the development of a dedicated burner for pipe natural gas. पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल हमारे देश में 80s के दशक से शुरू हो गया था, पर कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता था, परंतु हम देखें तो लास्ट 10 इयर्स में इसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हमारे कंट्री में, और इसका नेटवर्क जो है हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पर ये एक दुविधा आप कह लीजिए कि हमारे पाइप नेचुरल गैस का नेटवर्क तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, पर हमारे पास इसको जलाने के लिए कोई डेडिकेटेड बर्नर नहीं था, एंड
what these DMAs, I would say, the technicians of these CGD companies, what they were doing, they were just making some little changes in the existing LPG stoves, and they were using that old stove for firing pipe natural gas. जब इन पुराने LPG स्टोव्स का नॉन टेक्निकल कन्वर्ज़न हुआ है PNG को जलाने के लिए, तो उस नॉन टेक्निकल कन्वर्ज़न की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ इश्यूज़ आए, जिसमें कि इनका थर्मल एफिशिएंसी, जो कि इसकी ऊर्जा दक्षता है, इसमें कमी आना पहला कारण था, पहला रिज़ल्ट था। और दूसरा रिज़ल्ट रहा कि इस नॉन टेक्निकल कन्वर्ज़न की वजह से कुछ इश्यूज़ ऐसे आए, जैसे कि फ्लेम लिफ्ट होना या सडन फ्लेम एक्सटिंग्विश होना, इस तरह की इश्यूज़ कस्टमर्स के सामने आए। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही जब हमने कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस किए, तो हमको पता लगा कि इस तरह की समस्याएं कंज्यूमर्स को के सामने आ रही हैं, एंड देन वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस प्रोजेक्ट। एंड क्या ये बात सही है कि मतलब जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी, मुझे मिला कि जैसे जो हमारी पाइप नेचुरल गैस होती है वो LPG से केमिकली डिफरेंट है। तो जो पाइप से जो गैस आ रही है वो हल्की होती है हवा से, एंड LPG भारी होती है। तो अगर हम सेम बर्नर यूज़ करते हैं तो बहुत सारी गैस हवा में उड़ जाती है। एंड क्योंकि पाइप गैस केमिकली डिफरेंट है, पाइप गैस इज़ बेसिकली मीथेन, तो उसकी वजह से, और मीथेन इज़ मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या एक फैक्टर ये भी है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो LPG और PNG में बहुत डिफरेंस है। LPG जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर होता है, वहीं जो PNG है, पाइप नेचुरल गैस है, उसमें लगभग 92% तक मीथेन गैस रहती है। तो केमिकली इनकी कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, और इनकी जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि आपने सही कहा कि इनकी जो आप कहना चाह रहे थे कि इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है। LPG जो कि हवा से भारी होती है वो सेटल डाउन कर जाती है लीकेज के वक्त, और वहीं PNG जिसमें कि नेचुरल गैस है, उसकी डेंसिटी हवा से कम होती है और ये हमेशा एस्केप करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम अगर दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो एनर्जी कंटेंट होता है वो अगर हम बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें तो जो नेचुरल गैस है उसकी एनर्जी कंटेंट कम होती है LPG के मुकाबले, और अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इसकी फ्लेम वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर्स में भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से भी जब हम देखेंगे तो जब इनको जलाने के लिए जो भी अप्लायंस होता है, वो अप्लायंस बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हर एक अप्लायंस का एक हीट जो कहें कि एक कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो बर्नर्स हैं या डोमेस्टिक स्टोव्स हैं, इनकी कैपेसिटी 1.5 से लेकर 2.25 किलोवाट तक वेरी करती है। तो ये जो हीट कैपेसिटी होती है, इसको मैच करने के लिए अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं एक LPG स्टोव को PNG से, तो हमको इसमें जो हीट फ्लो रेट है, जो फ्यूल फ्लो रेट्स है, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस हीट कैपेसिटी को मैच कर सके। तो जो चेंजेस इन स्टोव्स में किए जा रहे थे, वो पहला चेंज तो ये था कि इनकी जो फ्यूल फ्लो रेट्स हैं, जो फ्यूल इनपुट है, उसको बढ़ाया जा रहा था ताकि वो इस हीट कैपेसिटी को मैच कर पाएँ, और इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो जब हमने उन रेट्रोफिटेड स्टोव्स को देखा, हमने कुछ उनके टेस्ट किए अपनी लैब में, तो हमने पाया कि एक तो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कम है, दूसरा जो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप हाई फ्लो रेट्स में फ्यूल को फ्लो कराते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसमें कि फ्लेम लिफ्ट होना एक बहुत प्रोमिनेंट एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन स्टोव्स में और इन बर्नर्स में आता है, जिसकी वजह से फ्लेम की टेम्परेचर्स भी कम रहती हैं और ये फ्लेम बहुत इजीली एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मीथेन की जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो CO2 से भी लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा रहती है। तो ऐसे इस केस में अगर आप इमेजिन करिए कि अगर
नेचुरल गैस का रिसाव हो रहा है, नेचुरल गैस अगर एटमॉस्फेयर में जा रही है बिना जले, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस एनर्जी एफिशिएंट और डेडिकेटेड पीएनजी बर्नर की कल्पना करी। एंड इसका क्या इम्पैक्ट है, लाइक बोथ इकोनॉमिकली एंड ऑन द इन्वायरमेंट? अगर इम्पैक्ट की बात करें तो आपको शायद ये पता होगा कि हमारी कंट्री एलपीजी की तरह नेचुरल गैस को भी इंपोर्ट करती है। तो हालांकि अभी इसकी अगर प्राइस की तुलना करें तो एलपीजी से कम है, पर आने वाले समय में डेफिनेटली जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी जो इसकी कीमतें हैं वो भी बढ़ेंगी। तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारे कंट्री में लगभग 70 लाख से ज़्यादा पीएनजी कनेक्शंस हैं, और ये अनुमान है कि आने वाले 2 सालों में ये जो कनेक्शंस की संख्या है वो 4 करोड़ हो जाएगी। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे कि इस स्टोव की, इस बर्नर की जो खासियत है कि ये लगभग 20 से 25% तक आपकी फ्यूल को सेव कर सकता है, और ये सिर्फ लैब के रिजल्ट्स के आधार पर नहीं कह रहे, ये हमने लगभग 200 से अधिक घरों में इसके जो फील्ड ट्रायल्स हैं वो किए हैं विभिन्न सीजीडी कंपनीज़ के साथ मिलके। ये उनके रिजल्ट्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 20% तक फ्यूल सेविंग इस बर्नर से संभव है। और अगर आप उन 70 लाख या 1 करोड़ से अधिक घरों की बात करें, और अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन सभी घरों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है कितना ज़्यादा हमारे कंट्री को रेवेन्यू का जो है सेविंग होगी, कितना ज़्यादा जो आम नागरिक है उनको हर महीने जो उनके बिल आ रहे हैं उसमें कितना कटौती होगी। तो उसके हिसाब से जो हमने एक अंदाज़ा लगाया, लगभग 500 करोड़ पर एनएम का जो रेवेन्यू है वो सेव हो सकता है अगर इस बर्नर को इम्प्लीमेंट किया जाए उन सभी 70 लाख घरों में। और 4 करोड़ घरों की बात करें और तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 4000 करोड़ पर एनएम तक पहुंच सकता है। वहीं अगर इन्वायरमेंट में इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर 25% फ्यूल नहीं जलेगा तो उसी रेशियो में आप लगा सकते हैं कि CO2 का उत्सर्जन जो है वो कम होगा, और हमारे अंदाज के अनुसार लगभग 0.35 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस जो हैं पर एनम इस बर्नर की इम्प्लीमेंटेशन से आप कम कर सकते हैं। तो ये इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट हैं। आपको कैसा लगता है कि जैसे मतलब एक लैब से आपने एक इतना ज़्यादा आई वुड से पावरफुल प्रोडक्ट बनाया है जिसको अगर एट स्केल यूज़ किया जाए तो उसके इम्पैक्ट के जो नंबर्स हैं, जो आप नंबर्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डू यू समटाइम्स फील कि हाँ आपने ऐसा कुछ बनाया है जो इतना ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर साहब का थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और जब हमने ये प्रोडक्ट को बनाया था तो इनिशियली हमको उतना महसूस नहीं हुआ कि इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। पुरानी बात है, कौन से साल में प्रोडक्ट? ये लगभग 2017-18 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया था और कुछ फील्ड ट्रायल्स इसके किए, तो रिज़ल्ट्स इसके काफ़ी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स थे। और जब ये रिज़ल्ट्स हमने डिस्कस किए अपने सीनियर्स के साथ में, अपने डायरेक्टर साहब के साथ में, तो उन्होंने इसका जो रियल पोटेंशियल है वो हमको बताया, और उन्होंने ये भी हमको बताया कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं पूरे कंट्री में तो इससे पूरी कंट्री को बहुत लाभ होने वाला है। तो यही जो था, उनके जो सुझाव थे उसको लेके हम आगे बढ़े, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि उन्होंने जो सुझाव हमको दिए हम उस पर काम करें, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी कमर्शियलाइजेशन की ओर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे आप बात कर रहे हैं कमर्शियलाइजेशन की, तो क्या कोलैबोरेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस बर्नर को जैसे वाइड स्प्रेड घरों में पहुंचाने के लिए? एंड कौन कौन से गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस या फिर कंपनीज के साथ आपने कोलैबोरेट करके इस बर्नर को लेके गए आगे? जी बिल्कुल, एक अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लैब्स में कई तरह के प्रयोग होते हैं, कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ बनती हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज़ का सही लाभ तभी मिल पाएगा जब हम उसको कमर्शलाइज़ कर पाएँ और मार्केट में उतार पाएँ।
तो हमने इस दिशा में काफ़ी मेहनत करी और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका जो सेकंड पार्ट है, जो कमर्शियलाइजेशन का पार्ट है, वो ज़्यादा मुश्किल रहा, ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हमारे लिए। तो हमने शुरुआत कुछ इस तरह से करी कि हमने सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को, BIS को हमने कांटेक्ट किया और वहाँ पे जो इनकी इससे संबंधित जो भी सेक्शनल कमेटी हैं, उस कमेटीज़ को हमने अप्रोच किया और वहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि BIS में सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स भी रहते हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स भी रहते हैं, जिसमें कि हमने शुरुआत में इसको डिस्कस किया तो हमको लगा कि इसका एक अच्छा रिस्पांस हमको मिला है, ख़ास तौर पे जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पांस हमको मिला। फिर उस रिस्पांस के आधार पे हमने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि हमने इसके जो पेटेंट्स हैं, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए अप्लाई किया और वो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने सारी BIS अप्रूव्ड स्टोव एंड बर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कांटेक्ट किया और अपने संस्थान में 15 मार्च 2019 को हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमने इन सभी स्टोव एंड बर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बुलाया और उनके सामने हमने इस प्रोडक्ट को एक तरह से आप कह सकते हैं कि लॉन्च किया हमने उनके सामने। और हमने उसी दिन ये ऑफ़र रखा कि जो भी कंपनीज इसको लेना चाहती हैं, इस तकनीक को लेना चाहती हैं, वो उसी दिन जो है अप्लाई करें। और उसी दिन हमने एक दिन में 15 मार्च के दिन हमने 30 कंपनीज़ को ये प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी, जो कि अपने आप में एक कहें तो एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और फिर उसके बाद जैसे जैसे इन कंपनीज़ ने इस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी ली और फिर शुरुआती कुछ सैम्पल्स इसके बना के हमारे लैब में टेस्ट किए और फिर एक अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद कुछ CGD कंपनीज़ ने लगभग जैसे कि आप समझिए कि जैसे 1000 पीसेस, 1500 पीसेस, 2000 पीसेस, इस तरह से कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स इन कंपनीज़ को दिए और जो कि आप कह सकते हैं एक तरह से एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल्स के लिए, कस्टमर का रिस्पांस जानने के लिए ये छोटे छोटे ऑर्डर्स दिए। और जब कस्टमर्स के कुछ अच्छे भी रिस्पांस थे, कुछ उन्होंने इसमें कमियां भी गिनाई, तो धीरे धीरे लगभग 2019 से लगभग 1-1.5 साल के बीच में इस प्रोडक्ट को हमने और फर्दर रिफ़ाइन किया बेस्ड ऑन द यूज़र फीडबैक। और उसके बाद अभी जो ये प्रोडक्ट है ये एक तरह से पूरी तरह से तैयार है और काफ़ी घरों में, जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 200 घरों में हमने इसका इस्तेमाल किया। और अभी आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि PCRA और EESL जो है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसका एक करार हुआ है, MOU हुआ है, जिसमें कि 10 लाख PNG स्टोव्स को आने वाले 2 सालों में मार्केट में लाया जाएगा। तो ये एक तरह से बड़ी अच्छी पहल है इन कंपनीज़ की, जिन्होंने कि इस प्रोडक्ट को पे विश्वास किया और हमको इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए पूरा सपोर्ट दिया। एंड आई थिंक आपने जो करा मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सोल्यूशन बनाना, और इतना ऐसा नहीं है कि आपने बस आइडेंटिफाई करा और मतलब एक दिन में ही लैब में बन गया। पूरा प्रोसेस रहता है टेस्टिंग का, कमर्शलाइजेशन का और बहुत कुछ। तो थैंक यू फॉर टेकिंग दैट जर्नी। और अभी आई थिंक टाइमिंग बहुत अच्छा है, इंडिया एनर्जी वीक की बात हो रही है ना हर जगह, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया के एनर्जी वीक की, और आप जहाँ बैठे हैं मैं कहती हूँ एक तरीके से गढ़ है ये एनर्जी का। तो एज अ साइंटिस्ट आपके लिए क्या रिलेशन है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर फ्यूल्स का, एनर्जी का और क्लाइमेट चेंज का, जो काम आप कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में? हाउ डू यू सी क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, जैसे कि हम जानते कि हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और जो क्लाइमेट कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं या जो फ्यूचर में जिस तरह की स्थिति हमारे सामने आ सकती है, वो बड़ी गंभीर स्थिति है। और इसको ध्यान में रखते हुए कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जा रहा है और जिसका कि मुख्य उद्देश्य जो भी कार्बन उत्सर्जन है, जो CO2 इमिशंस हैं या जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, उसको कम करना है। तो इस दिशा में इंडिया में, पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड काफ़ी काम किया जा रहा है और हमारे संस्थान में भी काफ़ी इस दिशा में काम किया जा रहा है।
और जैसे कि आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो उनकी भी जो एक अभी आप जानते होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक मिशन पे काम हो रहा है। तो फ्यूचर फ्यूल की बात करें तो डेफिनेटली हाइड्रोजन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्यूल है, क्योंकि इसका जब इस्तेमाल होगा तो इससे किसी प्रकार का CO2 एमिशंस नहीं होंगे। तो इस दिशा में हमारे इंस्टीट्यूट पे भी बहुत ही बड़े स्तर पे काम हो रहा है, न सिर्फ डोमेस्टिक कंबशन पे बट IC इंजन्स पे और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम हो रहा है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा एज़ फ्यूल, और डोमेस्टिक एनर्जी सेक्टर में भी हाइड्रोजन कुछ मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि हमने डाईमिथाइल ईथर का इस्तेमाल हम LPG के साथ में किस तरह से कर सकते हैं, इस पे काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च किया था। और काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूल है DME भी, जो कि एक मिथेनॉल इकोनॉमी के अंदर में हमारी कंट्री जिस पे आगे बढ़ रही है। तो DME का भी इस्तेमाल LPG के साथ किया जा सकता है एज ए ब्लेंडेड फॉर्म में। और नेचुरल गैस की बात करें तो डेफिनेटली हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगा। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन की, किस किस रूप में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एनर्जी सेक्टर में या IC इंजन्स में उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे भी कुछ शुरुआती काम हो रहे हैं। एंड जस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ इट, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया कैन बी द वर्ल्ड एनर्जी लीडर, आई वुड से रेन्यूएबल एनर्जी लीडर, बिकॉज इंडिया एनर्जी वीक आ रहा है एंड आई डोंट नो कि ये एपिसोड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता है क्या, बट मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया एनर्जी वीक के असली चेहरे आप लोग हैं। एंड अगर बाय चांस हमें अगर नरेंद्र मोदी जी सुन पा रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से कि हम रेडी हैं इंडिया के लिए, और ये हमारे इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो हैं ये रियल एनर्जी वीक के फेस हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर इंडिया करेगा तो आप जैसे फाइनेस्ट ब्रेन्स जो एट स्केल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आप लोग फर्स्ट वो हैं जो कुछ चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग जब बाहर बात करते हैं ना, हम लोग के स्टेटमेंट्स बोल देते हैं कि हाँ ये इंडिया लीड करेगा, या फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन पे हर न्यूज़पेपर में हर जगह एक्सपर्ट ओपिनियंस, हर जगह आर्टिकल्स हैं। बट जो ये चीज़ें हम बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस आपसे ही आ रहा है, बिकॉज हमें पता है कि हमारे साइंटिस्ट पीछे बैठे हैं जो काम कर देंगे। तो एज अ साइंटिस्ट आर यू कॉन्फिडेंट कि इंडिया कैन बी अ वर्ल्ड लीडर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेज ऑफ ट्रांजिशन? बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। और इंडिया, जहाँ तक मेरा मानना है कि इस दिशा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लीडिंग रोल प्ले करेगा। और आप जानते हैं कि जो CSIR है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे पास जितने साइंटिस्ट हैं वो शायद ही दुनिया में किसी और गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। तो डेफिनेटली हमारी एक बहुत अच्छी टीम है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी 1 वीक 1 लैब का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, तो हम अपनी सारी CSIR लैब्स की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ में अभी हमने पिछले कुछ सालों से कोलैबोरेटिव वे में काम करना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी हम न सिर्फ आपस में बल्कि हम कई तरह के इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, एकेडमियाज़ के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि ये इस दिशा में ही ये एक तरह से काम है कि हम अब एक मिल के सब लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ हैं, CSIR लैब्स हैं, एकेडमिया हैं, और भी कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनसे कि हमको फ़ायदा हो सकता है, या जिनको इस टेक्नोलॉजी या इन कामों से फ़ायदा हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि एक यूनाइटेड होके काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले सालों में आपको मिलेंगे। और डेफिनेटली इंडिया जो है इस दिशा में लीड करेगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। Thank you, Pankaj ji. Thank you for being with us today, and thank you for sharing all that. Thank you. Thank you.